اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں دل کے مریضوں کے لیے بری خبر، فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سٹنٹ کم پڑ گئے، سینٹرل پرچیز میں تاخیر سے کمی آئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سٹنٹ کم پڑ گئے، سینٹرل پرچیز میں تاخیر سے کمی آئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے سٹنٹ جو تھے وہ تاحال پرچیز سینٹرل پرچیز ان کی ممکن نہیں بنائی جا سکی، جس کے سبب سٹنٹ کا جو مسائل درپیش ہیں مختلف جو کارڈک ہاسپٹلز ہیں۔ تو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں سٹنٹس کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں جو سٹنٹ 2 سے 3 دن کا جو ہے اسٹاک باقی ہے۔ ہمارے ساتھ ایم ایس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال ڈاکٹر سائشہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کتنے سٹنٹ؟ جی السلام علیکم جی، جو ابھی میں نے اسٹاک پوزیشن لی ہے، ہمارے کچھ اسٹنٹ آن دا وے ہیں اور آج کی ڈیٹ تک ہمارے 200 اسٹنٹ ہو جائیں گے شام تک، لیکن ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ نو ڈاؤٹ ابھی تھوڑی سی شارٹیج چل رہی ہے اوور آل دا پنجاب، لیکن ہم اپنے پیشنٹس کو اسٹنٹس ڈال رہے ہیں۔ تو سر تقریباً روزانہ کتنے پیشنٹ کو جو ہے وہ اسٹنٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر یہ اسٹنٹ آ جاتے ہیں تو مزید کتنے دن جو ہے وہ مریض مستفید ہو سکیں گے، اور اصل وجہ کیا ہے کہ اسٹنٹ کیوں شارٹیج ہوئی؟ دیکھیں یہ ہے سینٹر پہ جو ہمارا اسپیشلائزڈ محکمہ کرتا ہے اور ہمیں ان کا آرڈر دیتا ہے، پھر ہم اس کے بعد ان کو پرچیز کرتے ہیں، اور یہ سارا ٹینڈر پروسیس ہمارے سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے۔ تو ان کی اب فنانشیل کھل گئی ہوئی ہیں اور ان قریب انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دے دینی ہے کہ آپ سپلائی آرڈر دے دیں اور پرچیز کر لیں۔ میری کمپنی سے کل بھی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی ڈائریکشن آتی ہے ہم آپ کو ود ان 2 سے 3 ویک میں اسٹنٹ پرووائڈ کر دیں گے۔ تو اتنا سفیشینٹ اسٹاک ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک نیو اسٹنٹ آئیں گے تو ہمارے پاس یہ اسٹاک موجود رہے گا۔ دادا روزانہ کتنے مریضوں کو اسٹنٹ ڈال جاتے ہیں؟ تقریباً ہمارے 10 سے 15 مریضوں کو اسٹنٹ ڈلتے ہیں ڈیلی۔ اینجیوگرافیز ہماری 40 کے قریب ہوتی ہیں، اور جو اسٹنٹ والے پیشنٹ ہیں 15 سے 20 بھی ہو جاتے ہیں، 15 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایوریج 15-12 کے قریب رہتی ہے ہماری۔ بالکل، روزانہ تقریباً 12 سے 15 مریض ہیں جنہیں جو اسٹنٹ ڈالے جاتے ہیں، اور اس سلسلے روزانہ میں 12 ڈاکٹر سے محمد 15 ساجد مریضوں کے سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ڈالر کی بڑھتی قیمت کے روپے پر گہرے اثرات۔ نومبر میں ترسیل زر 14% کم ہو گئی، ایکسپورٹ بھی 3 ماہ سے کمی کا شکار ہے۔ صنعت کاروں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا قرار دے دی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا صنعت کاروں کا مزید کیا کہنا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ تاجر برادری ہوتی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو تب بھی اس سے مستفید تاجر برادری کو ہونا چاہیے۔ اس پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی کیا رائے ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے پر؟ سینئر نائب صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت ڈاکٹر سجاد ارشد ہمارے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، کیا پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا؟ بہت شکریہ شراز، آپ کا سٹی 41 کا۔ یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں، ابھی جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے اور بہت نامساعد حالات ہیں۔ جس طرح ڈالر کی پوزیشن ہے، جس طرح لوگوں کی جو ہماری روٹین میں امپورٹس کی چیزیں جو ہمارے پاکستان میں را مٹیریل آ رہا تھا فیکٹریز چلانے کے لیے، میڈیسن کی لائف سیونگ ڈرگز کے حوالے سے بڑا پریشانی ہے، نہیں مل رہی، اس کا را مٹیریل نہیں بنا رہی۔ ٹیکسٹائل میں لوگوں کو را مٹیریل نہیں مل رہا، مشینری وہاں پہ کراچی پڑی ہے یا نہیں آ رہی۔ وہ چیزیں جو حالات ہم سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بہت بڑا اقدام ہے حکومت کا کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنا۔ اور یہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کا جو امپیکٹ ہے، اصل چیز یہ ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پبلک میں وہ آنا بہت ضروری ہے۔ جو اگر تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، آج بڑھی ہے، تو اسی وقت اگلے لمحے ہی کرائے بڑھ جاتے ہیں، چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں، اگر اس کا امپیکٹ اسی طرح ہی شارپ واپسی کا نہ آئے تو پھر فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر تو وہ انڈیویجولی فائدہ ہے جس نے اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں یا کسی چیز میں وہیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے۔ یہ فوری طور پہ اس کا امپیکٹ آنا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں پاکستان کے، جو بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں اور اس کرائے کا مد میں وہ اپنی جیب سے جو بڑا ہوا کرایہ وہ دیتے ہیں، تو جب کم پیٹرول کی قیمت ہوئی ہے تو وہ کم بھی ان کا کرایہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرایہ بھی کم ہونے چاہیے، اس کے نتائج مثبت نظر آنے چاہیے اکانومی پہ، اور وہ کرایوں کی شکل میں
اور خاص طور پر رینٹس کی हुकूमत शक्ल फौरी में। तौर पर किरायों में कमी करे। शिराज अपडेट करे। शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फेस्को अफसरान की स्केल 17 से 18 में तरक्की के अहकामात। तरक्की पाने वालों में एक्सियन अवैस रशीद, वकास रशीद शामिल। उस्मान गनी, मंजूर अहमद, साजिद परवेज अख्तर, मोहम्मद शहजाद अनवर भी शामिल हैं। शहजाद महमूद को भी स्केल 17 से 18 में तरक्की दे दी गई। फेस्को हुकाम के मुताबिक मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की मिली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को में अफसरान की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से स्केल 17 से स्केल 18 में तरक्की के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तरक्की पाने वालों में एक्सियन अवैस रशीद, वकास रशीद और उस्मान गनी समेत 9 अफसरान को जो है वो तरक्कियां दी गई हैं। मंजूर अहमद, साजिद परवेज अख्तर, मोहम्मद शहजाद अनवर और शहजाद महमूद भी स्केल 17 से स्केल 18 में जो है वो तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इस हवाले से फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियां मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। करप्शन केसेज और महकमाना इनकारी की जद में आने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं दी जाएंगी। तरक्की पाने वालों से मुतालिक अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भट्टा मजदूर मुतालिबात मनवाने सड़कों पर निकल आए। मर्दों खवातीन मजदूरों ने बच्चों के हमरा रैली निकाली। जबरी मुशक्कत लेने का इल्जाम भी आयद किया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा मजदूरों के मुतालबात के हवाले से। अच्छा बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भट्टा मजदूर अपने मुतालबात के हक पर सड़कों पर निकल आए हैं। बच्चे, खवातीन और मर्द जो भट्टा मजदूरों पे काम करते हैं वो अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो शहबाज चौक के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। इसी वाले से इन मजदूरों की जो क़यादत कर रहे हैं चौधरी शबीर अहमद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप लोगों का एहतजाज तो कई सालों से चल रहा है, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे आप लोगों के, है क्या? जी, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया गवर्नमेंट पंजाब के अहकामात को पूरा करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आज ये भट्टा मजदूरों ने आज ये ऐलान जंग कर दिया है कि अब जब तक हमें गवर्नमेंट पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं दी जाएगी, जो कि 1850 रुपये है, निकासी वाले की 468 रुपये है और रेड़े वाले की 600 रुपये है और जो महाना बुनियादों पे काम करने वाले हैं उनकी 26,828 रुपये है। जब तक वो नहीं मिलेगी अब ये मजदूर सड़कों पे रहेंगे। मैं ये बड़े ही शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि भट्टा मालकान हुकूमती रेट को बार बार चैलेंज कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप लोगों की मजदूरी कितनी है, कितनी उज्जत मिल रही है? जी, हमारी गवर्नमेंट पंजाब ने जो पथेर वाले की मजदूरी है वो 1850 रुपये मुकर्रर किया, हमें 950 से 1050 तक दी जाती है। उसमें से भी गैर कानूनी कटौतियाँ जो है 200-250 रुपया काट ली जाती है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि काम करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया हमें। हम जब तक कर्ज नहीं लेते, दुकानों से उधार नहीं उठाते, हम बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते। में ये भी कह रही है कि आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी मिल रहे हैं, 30 लोगों को कार्ड मिल गए हैं, बकाया को जल्द मिल जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिले हैं? जी जी, जो सिर्फ मंजूर नजर लोगों को भट्टा मालकान ने दिए हैं। जी, आज से 5 साल पहले भी ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी। वो अपने अजीजों अकारब को वो जाली अप्लाई जाहिर करके उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं। मजदूर का अभी तक कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि थाना सदर गोजरा में मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद से कराची का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर। पाकिस्तान एक्सप्रेस को 3 माह बाद सफर की इजाजत मिल गई। 23 दिसंबर को कराची रवाना होगी। फैसलाबाद से कराची का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आई। पाकिस्तान एक्सप्रेस को 3 माह बाद सफर की इजाजत मिल गई। 23 दिसंबर को कराची रवाना होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक्सप्रेस को सफर की इजाजत जो है वो दे दी गई है। सैलाब के पेश नज़र पाकिस्तान एक्सप्रेस को किया गया था। 3 माह बंदिश के बाद रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं।
पाकिस्तान एक्सप्रेस 23 दिसंबर को फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी और पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह के औकात में फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना हुआ करेगी। इसी वाले से रेलवे इंतजामिया का यही कहना है कि कल से पाकिस्तान एक्सप्रेस की जो बुकिंग है वो खोल दी जाएगी। सैलाब के पेश नज़र 6 ट्रेनें बंद की गई थी, 3 जो हैं वो एक माह बाद खोल दी गई थी और उसके बाद 3 ट्रेनें ताहाल बंद थी और उनमें से पाकिस्तान एक्सप्रेस को भी जो है वो सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। इसी वाले से महकमा रेलवे का यही कहना है कि मरला बार ट्रेन सफ़र जो है वो बहाल किया जा रहा है ताकि मुसाफिर फराहम की जा सके। ट्रेन सफर से मुतालिक अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में उस्मान गनी टाउन मेन रोड के दोनों किनारे पर कचरे के ढेर लग गए। शहरी बदबूज़दा माहौल से परेशान, अरसा दराज से पड़ा कचरा ना उठाने का शिकवा किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात के हवाले से। के मनाजर नजर आ रहे हैं। शहरी जो हैं ताफुन ज़दा फिजा की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां फैलती हैं, हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो दिखाई नहीं देती है। ये जो कचरा है इसको काफ़ी अरसे दराज से उठाया नहीं गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि मैं 6 साल से ये कचरा यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं जब से फैसलाबाद आया हूँ ये कचरा इधर ही है, ना कोई इसका कोई काम करवाता है ना इसे कोई यहाँ से उठाता है। मैं तब से इसे यही देख रहा हूँ। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनकी राय जानते हैं। कचरा कोई भी नहीं उठाता यहाँ पे, ऐसे पड़ी होती गंदगी सारी। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि 6 साल से जो है ये मनाजर देखने को नजर आ रहे हैं। अक्सर बेशतर यहाँ पर जो कचरा है वो इसी तरह से पड़ा रहता है। बहुत सारे जो शहरी हैं वो उस वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अक्सर बेशतर जो है वो बीमार रहते हैं और हुकूमत की इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। कोई भी आके महकमा जो है शहरियों की दुहाई खलजा अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका खलजा। और यहाँ आपको बताएं, कभी सर्वर का मसला तो कभी इंटरनेट सुस्त रो। फैसलाबाद में ऑनलाइन इस्तेमाल का हुसूल मुश्किल हो गया। मजीद इस मसले से मुतालिक जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कचहरियों के अंदर ई स्टाम्प पेपर के हवाले से जो मसाइल हैं वो ताहाल जो हैं वो हल नहीं हो सके। कभी कभार तो सर्वर डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ जो कचहरियाँ हैं उनके अंदर इंटरनेट की स्लो स्पीड के भाई जो साइलिन है उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से साइलिन को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बुकरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो सर आप बताइएगा, जिस तरह कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो क्या क्या मुश्किलात होती हैं साइलिन को इससे? देखिए जी, साइलिन को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। ये जो ई सिस्टम इन्होंने निकाला है इसमें टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि साइलिन जो है वो जिनके लाखों के हिसाब से उन्होंने पैसे दिए होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि आज के दिन में उनकी रजिस्ट्री हो जाए या ई स्टाम्प पेपर निकल आए। सर्वर डाउन होने की वजह से उनके लाखों रुपए जो है वो स्टेक पे लगे होते हैं और सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो नोटिस लें और जो इंतज़ामिया है इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके जो सिस्टम है वो इसको अच्छे तरीके से अपग्रेड करें। तो नेट की स्पीड के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि कचहरियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और ई स्टाम्प पेपर तो टोटल ऑनलाइन इंटरनेट ज़रूरी है। जो नेट की स्पीड है वो ख़ास तौर पे इस तरह से डिस्टर्ब है कि यहाँ पे बहुत से जैमर लगे हुए हैं। जैमर लगने की वजह से नेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। यहाँ पे नेट की स्पीड के हवाले से कोई जो मोबाइल कंपनीज हैं उनको चाहिए कि कोई टावर लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की टीम पर लालिया के थाना मोहम्मद वाला की हदूद में मुबैना हमला। गिरफ्तार मुलजिम को हथकड़ी समेत फरार कराया, टीम के कपड़े फाड़ दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की टीम पर लालिया के थाना मोहम्मद वाला की हदूद में मुबैना हमला। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, अजमत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजमत, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की टीम है जो कि मुकदमा नंबर 57/22 के सिलसिले के तहत जो मुलजिम जुबैर नामी मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने तहसील सिला वाली जिला सरगोदा का जो इलाका चक नंबर 139 है उसके अंदर रेड किया था और वहाँ से जो मुलजिम जुबैर है उसको गिरफ्तार कर लिया था। तमाम जब वो मुलजिम को गिरफ्तार करके वापसी लेकर आ रहे थे तो थाना मोहम्मद वाला जो कि सरकार लालिया की हदूद में आता है वहाँ पर जैसल पुल के करीब जो मुलजमान थे FIR के मुताबिक
11 जो नामजद मुलजमान और 25 से 30 जो नामालूम मुलजमान थे, उन्होंने FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की टीम पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिससे उन्होंने FIA टीम के जो एहलकार उनकी कपड़े भी फाड़ लिए और इसी के साथ साथ जो नकदी है और उनके जो सर्विस कार्ड है वो भी छीन लिए हैं। और इसके बाद जो मुल्जिम है जुबैर अख्तर, उसको हथकड़ी समेत वहां से फरार करवा दिया है। जिस पर FIA की टीम ने 15 पर कॉल की तो थाना मोहम्मद वाला टीम है वो मौके पर पहुंची है। और ठीक है अजमत, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब फिशरीज का अहसन इक़दाम, अब फिश लाइसेंस लेना होगा आसान। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के बाहमी इश्तराक से डिजिटल फिशरीज ऐप लॉन्च करने की नवीद सुना दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। का अहसन इक़दाम के शहरियों को अब ऑनलाइन जो है फ़िश के लाइसेंस है वो मुहैया करने के लिए ऑनलाइन ऐप और उसके साथ साथ जितने भी डिजिटलाइजेशन आलात हैं उनको बरूए कार लाते हुए अब ऑनलाइन ऐप के थ्रू लाइसेंस मुहैया किए जाएंगे। पहले मरहले में जो है अभी लैपटॉप से जो है वो फराहम किए गए हैं और इसके बाद कितने मरहलों के बाद जो है वो ऐप लॉन्च कर दी जाएगी और जो शहरी हैं वो किस तरह ऑनलाइन घर बैठे ही ऐप्स के थ्रू अपने लाइसेंस जो है वो बनवा सकेंगे। आइए जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज राना मोहम्मद खालिद साहब से। खालिद साहब बताइएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप अभी ये पहले मरहले में तो लैपटॉप्स मुहैया किए गए हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं उन तक ये कैसे रसाई पहुंचेगी? जी, ये पंजाब फिशरीज़ ने जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर सिकंदर हयात, उनके विजन के मुताबिक ये इसको मज़ीद आवाम की सहूलियात को बेहतर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है उसको मुतारफ़ करवाया है। इसमें ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम डिजिटलाइजेशन ऑफ फिशरीज़ पंजाब फिशरीज़ जो है उसका इजरा किया गया है। तो इसमें पहले मरहले में हमने जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो प्रोवाइड की हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं और स्कैनर्स और इसके दूसरी जो एसेसरीज़ हैं वो ज़िला लेवल पे ऑफिसर्स को मैसर हैं। और जैसे ये पंजाब जो है IT बोर्ड उसकी तरफ से ऐप का इजरा कर दिया जाएगा तो उसमें फिर जो फार्मर्स हज़रात हैं उनको ऑनलाइन जो है फिशरीज़ की जो सहूलियात मैसर होंगी, जिसमें लाइसेंसेस वो हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन और डिजिटल ऐप के ज़रिए वो मालूमात हासिल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन फैसलाबाद में 25 दिसंबर को कन्वेंशन होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है ताकि यहाँ पर PTA को बताया जाए कि किस तरह से लीगी वर्कर्स भी मोटिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर फैसलाबाद में भी 25 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना एहसान अफजल खान मौजूद है। राना साहब बताइएगा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और इस हवाले से इसका पर्पज़ क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो वर्कर्स को मुतहरक करने के लिए बुलाई जा रही है और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, हम तो इंतज़ार में हैं कि कब तहलील होंगी। तो एक तरीके से वर्कर्स को मुतहरक करना, फैसलाबाद से PMLN के झंडे को दोबारा मैं समझता हूँ एक तरीके से एनर्जाइज करना, तो ये मकसद है। और बड़ा अरसा हो गया था कि वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हुई थी, पिछली मेरे ख्याल से 2 साल हो गए थे। तो एक उसी जज्बे को रिन्यू करने के लिए और आगे इलेक्शंस अगर पंजाब में होते हैं तो उसकी तैयारियों के आगाज़ के लिए ये किया जा रहा है और भरपूर होगा और तारीखी होगा। हमेशा PMLN का वर्कर्स कन्वेंशन जो आखिरी क्रेसेंट ग्राउंड में भी हुआ था जो मेरे हल्के में था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था और ये भी इंशाल्लाह एक कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन होगा। इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कब तक होने जा रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन की भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया दे चुका है। देखिए जो कौमी इलेक्शंस हैं वो तो इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे। अक्टूबर में जब असेंबलियों का टेन्योर अगस्त 2023 तक है वो मुकम्मल होगा। अगर ये तहलील कर देते हैं पंजाब की असेंबलियाँ तो वो तो 90 दिन बाद डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कब ये तहलील करेंगे असेंबलियाँ और कब इलेक्शंस होंगे। कि ये दावा इनका जो है कि बड़ी पॉपुलर होगी ये PTI, ये जो है ये मुस्तरद होने की ज़रूरत है और ये बड़ा अच्छा मौका है पंजाब के अंदर अगर इलेक्शंस हो जाते हैं। बाकी अभी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं उसकी अभी कोई फाइनल डेट तो नहीं आई, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि अप्रैल मई के अंदर इलेक्शन मुमकिन है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और यहाँ आपको बताएं, झंग में सानिहा APS की याद में पुलिस लाइन्स में तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी और DPO राशिद हिदायत ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। के शोहदा की याद में आई पुलिस लाइन्स में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी और DPO झंग राशिद हिदायत की जानिब से यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई है। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जो है आज साने APS का दिन है, क्या कहेंगे इस मौके पर, क्या पैगाम देंगे? सर आज का जो साने है, इस पर बहुत ही अफसोस का आज का हमारे पास एक दिन आया, एक अलनाक होलनाक जो वहाँ पर दहशत गर्दी की गई। हमारे जो शोहदा थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया दहशत गर्दी का। तो आज का जो ये दिन है, ये हमारा एक अहद का भी दिन है कि हम अपने इस वतन के लिए हुब्बे वतन के इस जज्बे के साथ हम अपने इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और उनके परवरदिगार दर्जात बुलंद फरमाए, जिन हमारे आर्मी के शोहदा ने, हमारी पुलिस के शोहदा ने इस पे अपनी जान का नजराना पेश किया। तो इस अहद के साथ कि हम इस वतन के लिए अपनी जान तक का नजराना देने के लिए तैयार हैं। DPO झंग राशिद हिदायत मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, साने APS में जहाँ पे नन्हे बच्चों ने जो शहादतें दी, वहीं पे जो है दहशत गर्दी की इस जंग में जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी शहादतें मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन इस अमर की इक्कासी करता है कि हम एज ए कौम जो है वो डटे रहें। ये जो समाज दुश्मन अनासिर हैं, ये जो दहशत गर्द हैं, बेसिकली ये इंसानियत दुश्मन है, ना इनका कोई मज़हब है, ना इनका कोई नज़रिया है, और ये शैतान के आलाकार हैं। और ओवरऑल एज ए सोसाइटी, एज ए कौम, हमें इनके खिलाफ सीना सपर होने की ज़रूरत है। जो इन्होंने मासूम बच्चों के खिलाफ जुल्म किया, आज का दिन उस जुल्म की याद में हम जो है वो शोहदा के खराज तहसीन पेश करते हैं, पुलिस के शोहदा को भी, पाकिस्तान आर्मी के शोहदा को भी। और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ये कौम रेजिलियंस के साथ लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस बात की हम जो है वो आज मुसम्मम इरादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह दहशत गर्दों का कलाकमा करेंगे। पंजाब पुलिस, झंग पुलिस जो है वो दहशत गर्दों, समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ, समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार आ जाएगी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जजेस के माबैन क्रिकेट मुकाबला, एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस के दरमियान क्रिकेट मैच जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।